یہ ہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد، جنہیں فاتح قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ یورپ فتح کرنے والا ایک ایسا سلطان جس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ سلطان محمد دوئم، جنہیں آج بھی مغرب سلطان محمد دی کانکورر کے نام سے پکارتا ہے۔ لیکن ایک جنگ ایسی ہے جہاں فاتح قسطنطنیہ میدان چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ کا پرسرار باب، یورپ فتح کرنے والا سلطان خالی ہاتھ کیوں لوٹا؟ ڈریکولا کی فلم تو آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ہوگی تو سنا ہوگا، مگر بریم اسٹوکر نے یہ کردار کہاں سے لیا؟ یہ کوئی فلمی کردار نہیں، ایک حقیقی کردار ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دور، یورپ کی ایک ریاست کا حکمراں ڈریکولا، اتنا سفاک کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اتنا ظالم کہ وہ انسانوں کا جان لینے میں کوئی گریز نہیں، کس ظالمانہ طریقے سے۔ ایک عجیب و غریب داستان ہے، ایک عجیب و غریب کردار ہے تاریخ کا۔ مگر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کہیں وہ ولن ہے اور کہیں وہ ہیرو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، مگر یہاں میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا داستان ہے، کیا راز پوشیدہ ہے تاریخ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بڑا سا میدان، دور دور تک بڑی بڑی نیزوں جیسی لکڑی کی اونچی میخیں، اور ان میخوں میں گڑے ہیں ترک سپاہی اور عمائدین۔ حد نظر کٹی پٹی خونم خون لاشیں، لکڑی کے نیزوں میں پروئے 20,000 انسان، میلوں تک یہی منظر، بے جان چہرے، مردہ جسم، سڑے گوشت کی بدبو اور مردہ کپڑوں کی پھڑپڑاہٹ، جیسے لاشوں کی فوج جنگ کے لیے صف بند ہو۔ 10 جون 1464 یہ خونی منظر ہے والاشیا شہر کے باہر کا، یورپ کی چھوٹی سی ریاست۔ عثمانی سلطنت محمد دوئم لشکر کے ساتھ جنگ کرنے پہنچے۔ کون سے سلطان؟ سلطان محمد، جو قسطنطنیہ فتح کر چکے۔ یورپ ان سے کانپتا ہے۔ سلطان محمد یہ خوفناک منظر دیکھ کر کہتے ہیں جنگ اتنی اہم نہیں، اور لوٹ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ فتح کرنے والا جری سلطان محمد دوئم میدان سے جنگ کیے بغیر لوٹ جاتا ہے۔ کیا فاتح قسطنطنیہ خوفزدہ تھے؟ انسانی تاریخ کی بدترین سفاکیت سے ڈر گئے؟ مگر یہ کون تھا اتنا سفاک، اتنا ظالم، زندہ انسانوں کو میخوں میں پرو دینے والا اذیت پسند؟ ایک ایسا حکمراں جس پر مشہور زمانہ فلم ڈریکولا بھی بنائی گئی۔ یہ ہے ولاد سوئم ڈریکولا۔ یورپ میں اسے ولاد دی امپیلر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی انسانوں کو میخوں میں پرونے والا۔ فاتح قسطنطنیہ نے رات قیام کے لیے لشکر کے گرد خندق کھدوائی۔ رومانیہ کے مشہور مورخ رادو فلریسکو اور ریمنڈ مکنیلی اپنی کتاب ڈریکولا پرنس آف مینی فیسز میں لکھتے ہیں، ڈریکولا نے سلطان کو ہلاک کرنے کے لیے رات کو لشکر پر حملہ کیا، مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد بھی ڈریکولا مسلسل گوریلا جنگ کے ذریعے عثمانی لشکر کو نقصان پہنچاتا رہا۔ سلطان محمد چند روز بعد ڈریکولا کے بھائی رادو دی ہینڈسم اور فوجی لشکر کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ بہرحال سلطان محمد کی واپسی پورے یورپ کے لیے خوشی کی خبر تھی۔ ولاد سوئم سلطان محمد سے بخوبی واقف ہے، چونکہ ان دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے۔ اس عثمانی لشکر کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے دیکھتے ہیں تاریخ کا سفاک ترین حکمراں ولاد ڈریکولا ہے کیا۔ ولاد سوئم کا باپ ولاد دوئم والاشیا کا حکمراں ہے۔ والاشیا آج کے رومانیہ میں واقع تھا۔ ولاد دوئم کو یورپی اور عثمانی فوجوں کے خلاف بہادری پر اسے رومن امپائر کی جانب سے ڈریکول کا خطاب دیا گیا۔ لاطینی زبان میں ڈریکول کا مطلب ہے ڈریگن۔ والد اور بڑے بھائی کے قتل کے بعد سفاک ولاد سوئم ڈریکولا
1448 में तख्त पर बैठा, मगर उन्हें हटा दिया गया। 8 साल बाद दोबारा हुक्मरान बने और बर्बरियत का रिकॉर्ड कायम किया। दिलचस्प बात यह है कि व्लाद स्वयं पर यूरोप की मुख्तलिफ जबानों में बेशुमार किताबें लिखी गईं। इसके किरदार को लेकर फिल्में बनाई गईं। इसके अलावा हॉलीवुड में जो खून पीने वाला ड्रैकुला का किरदार हम देखते हैं, वो भी व्लाद स्वयं से मुतासिर होकर तख्लीक किया गया है। ब्रैम स्टोकर के मशहूर ज़माना नॉवेल जिस पर फिल्में बनाई गईं, व्लाद स्वयं के किरदार से मुतासिर होकर तख्लीक की गई है। कुर्ट ट्रैप्टो अपनी किताब व्लाद III ड्रैकुला द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द हिस्टोरिकल ड्रैकुला में तहरीर करते हैं, व्लाद स्वयं की अपनी जिंदगी में इसके मुताल्लिक लातादाद कहानियां गर्दिश में रही। इनमें ड्रैकुला को ईसाइयों का कौमी हीरो करार दिया गया, जिसने उस्मानियों का मुकाबला किया, और साथ ही एक खूनी, सफाक और जालिम हुक्मरान भी करार दिया जाता रहा। ये रिवायात और कहानियां वक्त के साथ गर्दिश करती रहीं। व्लाद स्वयं से मुतासिर होकर 1897 में ब्रैम स्टोकर ने नॉवेल में ड्रैकुला का किरदार पेश किया, जिस पर बाद में मशहूर ज़माना फिल्में बनी। एक तरफ रोमन एम्पायर तो दूसरी जानिब अजीम उस्मानी सल्तनत, तीसरी जानिब यूरोप की जंगजू हुकूमतें। ड्रैकुला ने इख्तिदार मजबूत करने के लिए अवाम को अपने साथ मिलाने का खौफनाक मंसूबा तैयार किया। हुक्मरान बार बार तब्दील होने के बायस असल कुव्वत तबका अशराफिया को हासिल थी। ड्रैकुला ने सबसे पहले वलाशिया के तबका अशराफिया को शिकार बनाया। 1457 में जब 200 अमीर खानदान ईस्टर की तकरीब में जमा थे, ड्रैकुला ने तमाम अफराद को लकड़ी के नेज़ों में परोकर शहर के मैदान में लटका दिया। इसके बाद ड्रैकुला ने एक खुसूसी फौज आर्माजी बनाई, जो अजियत देकर मारने की माहिर थी। बेहतरीन तनख्वाह, काम सिर्फ ड्रैकुला के हर हुक्म पर अमल करवाना, जो न माने लकड़ी के नेज़ों में परोकर मार दिया जाता। रादो फ्लोरेस्को और रेमंड मैकनेली ड्रैकुला प्रिंस ऑफ मैनी फेसेस में लिखते हैं, इटली के कुछ सिफारतकार ड्रैकुला के दरबार में पेश हुए, ताजीम में अपनी टोपियां उतारी, मगर छोटी टोपी यानी स्किल कैप नहीं उतारी। ड्रैकुला बरहम हुआ तो सिफारतकारों ने वजाहत की कि अतालवी रिवायात के मुताबिक स्किल कैप नहीं उतारी जाती। ड्रैकुला ने एन स्किल कैप की जगह दिमाग में लकड़ी के नेज़े ठोकने का हुक्म दिया और कहा, तुम्हारी रिवायत को मजीद मजबूत कर रहा हूं। सिफारतकारों का आर्माजी ने मेखों में प्रो दिया। ड्रैकुला ने वलाशिया की अशराफिया को तोड़ा और किसानों को खूब बढ़ावा दिया। 1459 में उस्मानी सल्तनत को नजराना देना बंद किया तो किसान टैक्स से भी आजाद हो गए। मौरखीन के मुताबिक ड्रैकुला किसानों और गरीबों की खबरगिरी करता, हुकूमत भरपूर मदद करती और यही किसान और गरीब इसकी फौज थे। इस तरह ड्रैकुला हीरो बन गया। रोमानिया में मशहूर किस्सों के मुताबिक एक बार भिखारियों को जमा करके कमरे को आग लगा दी ताकि दूसरों की मेहनत पर जीने की सजा दी जाए। रूस के इश्तराकी माशरे में किसानों की भलाई और यूरोप में उस्मानी सल्तनत का मुकाबला करने पर ड्रैकुला को हीरो माना जाता है। सर्जेन अपनी किताब इन द शैडो ऑफ एम्पायर्स में लिखते हैं, इसने 6 साल हुकूमत की, मगर ये सुनहरा दौर करार दिया जाता है। एक ऐसा माशरा जहां सख्त गिरी के बायस जराइम न थे, मुजरिमान को लकड़ी के नेज़ों में प्रो दिया जाता, गरीब अवाम खुश थे। कम्युनिस्ट मौर्रिख इसे किसानों और मजदूरों का हकीकी कायद करार देते हैं। एक वक्त ड्रैकुला के बाप व्लाद दोयम तकरीबन 1 साल उस्मानी सल्तनत के कैदी रहे। बाइबल पर अताअत की कसम उठाने के बाद व्लाद दोयम ने दोनों बेटे यानी व्लाद स्वयं और रादो दी हैंडसम को नेक नियति के तौर पर उस्मानी तहवील में दे दिया। व्लाद स्वयं ड्रैकुला 6 साल यानी 1448 तक सल्तनत उस्मानिया में रहे और रादो दी हैंडसम 1462 तक। यह भी हकीकत है कि रादो दी हैंडसम तमाम उम्र उस्मानी सल्तनत के वफादार रहे। इन दिनों शहजादा मोहम्मद तालीम और तरबियत के मराहिल में थे। व्लाद दोयम के दोनों बेटों को भी उस्मानी सल्तनत ने तालीम और तरबियत की सहूलत फराहम की। शहजादा मोहम्मद और व्लाद स्वयं हम उम्र थे। उस्मानी फौज का मुकाबला करने के लिए ड्रैकुला ने मजहब के नाम पर यूरोप से मदद तलब की, मगर ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के दरमियान तारीखी इख्तलाफात के बायस कोई मुल्क आगे नहीं आया। फ्लोरेस्को और रेमंड मैकनेली लिखते हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह वापस लौट गए, मगर यह मतलब नहीं कि जंग खत्म हो गई। उस्मानी फौज और ड्रैकुला के भाई रादो दी हैंडसम ने मिलकर ड्रैकुला स्वयं को शिकस्त दी।
अशराफिया की मदद से रादो दी हैंडसम तख्त पर बैठे और ड्रैकुला भाग गया। 1475 में रादो दी हैंडसम मरे तो हंगरी ने ड्रैकुला को दोबारा तख्त पर बिठाने की कोशिशें शुरू कर दी। ड्रैकुला नवंबर 1476 में तीसरी बार तख्त नशीन हुआ। अगले ही महीने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ जंग करते हुए लड़ते हुए मारा गया। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक इसका सर काट कर इस्तांबुल के मरकजी दरवाजे पर लटकाया गया। बिलाखिर इंसानी तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचा। तो जनाब, ये था व्लाद III द इम्पेलर, तारीख का एक सफाक और जालिम तरीन हुक्मरान। बड़ी अजीबोगरीब दास्तान है। किस तरह लोगों को मारता था, क्या करता था, ये आपके सामने आया। तो ड्रैकुला कोई फिल्मी किरदार नहीं है, बल्कि यहाँ से इससे व्लाद द इम्पेलर को ड्रैकुला बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।